Hello everybody, we're just waiting for a couple of seconds for people to join. Hi there, thanks for joining. Hello everybody, good evening to all of you. This is Priya from Florida and I'm from Cookielicious, which is a vegan and vegetarian food blog. I'm the owner of this food blog. I create vegan, vegetarian recipes. There's no volume, 1 second. Hello, can you hear me now? Okay. So, hello everybody, wish you all a very good evening. I hope you've been enjoying all the live videos happening on Amul today. This is Priya here from Florida and I am the owner of this vegetarian and vegan food blog called Cookielicious. I have my YouTube channel, I'm on Instagram, Facebook, so please feel free to look me up and follow me if you like the recipes you see. Today I have picked two very special recipes of mine. One is Indian curry pasta, which is a mix of two of my favorite cuisines, which is Italian and Indian. And the other one which we'll be doing is a very indulgent seasonal dessert, which is mango mastani, which is perfect for the season we are in right now. So let's get started. I'll go through the ingredients, but first let me add Amul ghee because we're making Indian curry pasta, so it has to be made with Amul ghee. So I have just added about a tablespoon of ghee to the pan. While it heats up, I will just take you through the ingredients we need for this. So I'm using a couple of vegetables here. There's onion. I have actually even chopped a jalapeno in it. There's one tomato. This is one large onion. And this is about 1.5 cups of chopped mushrooms, 1 cup of green peas. There's cilantro, about 1/3 cup. Here I have taken tricolor bell peppers. I have just used half of each, so half green capsicum, half yellow and half red, and I've just finely chopped it. Then I've taken about 8 to 10 cloves of garlic and I've minced it. Then there are a handful of curry leaves. There's Parmesan cheese. If you're vegan, you can skip the ghee and the cheese or use vegan cheese. And for the spices, there's turmeric, there's cumin and coriander powder. There's garam masala, mustard seeds, cumin seeds, chili powder. And of course, I have cooked the pasta. This is about 10 ounces of pasta. It's 1 packet of pasta. Okay. अच्छा, हिंदी में बोलूँ, हिंदी में भी बोलती हूँ. अभी हमने पहले घी डाला है पैन में गरम होने के लिए. उसके बाद आपको मैंने सब्जियां जो चाहिए वो दिखा दी है. और कोई सवाल है? We are making Indian curry pasta first. So let's start. तो अभी घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे राई. टू टीस्पून्स ऑफ राई. और ये जैसे क्रैकल होगा हम अगले इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे. Hi there, thank you so much for joining. Please feel free to ask me any questions you have while I'm cooking. I'll try to address all the questions as much as I can. कोई भी सवाल हो प्लीज पूछिए, I'll try to answer. तो ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है और एक बहुत नए तरीके की पास्ता रेसिपी है.
आपने वाइट सॉस पास्ता खाया होगा, रेड सॉस खाया होगा, पेस्टो खाया होगा, लेकिन ये इंडियन स्टाइल पास्ता है जो बहुत अलग है और कोई सॉस नहीं है इसमें. इट्स मोर लाइक अ करी पास्ता. तो अगर आप so if you want to try something new and different, then you should try this recipe. It's really very flavorful. Yes, I will share the YouTube video link as well. Yes, मैंने पास्ता ऑलरेडी कुक किया है. ये दिस पास्ता इज ऑलरेडी कुक्ड एंड इफ यू कैन सी आई हैव नॉट ओवर बॉइल्ड इट. आई हैव केप्ट इट अल डेंटे. मतलब अगर पास्ता के पैकेट में लिखा है 8 से 10 मिनट तक उसको पकाए, तो मैंने इसको 8 मिनट तक पकाया है. आई हैव ओनली कुक्ड इट फॉर 8 मिनट्स. आई हैव नॉट कुक्ड इट फॉर लॉन्गर. तो ये आपके पास्ता के पैकेट में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कीजिए एंड जस्ट मेक द रेसिपी एज पर योर पास्ता पैकेट. कुक इट एज पर योर पास्ता पैकेट. Hello, thank you so much for joining. तो वी आर मेकिंग इंडियन करी पास्ता. आज इंडियन करी पास्ता बन रहा है. तो ये एक इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ डिश, एक अलग रेसिपी है. सो होप यू लाइक इट. तो अभी मैंने घी रखा है गरम होने के लिए और उसमें मैंने राई डाली है. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राई टू क्रैकल. यस, आप इसमें कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं. मैंने आज ये यूज़ किया है, लेकिन आप पेने पास्ता यूज़ कर सकते हैं, रोटिनी, स्पेगेटी, कुछ भी बना सकते हो आप ये रेसिपी के लिए. एनी पास्ता जो आप whatever you have you can use basically. And also with veggies you can customize this with whatever vegetables you have. Yes, आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं पूजा. और वेजिटेबल्स में you can add, edit, omit anything you want. अगर आपके पास मशरूम नहीं है तो आप मशरूम मत डालिए. If you don't have bell peppers, it's okay. If you don't have tricolor, it's okay. If you only have one color bell peppers, that's also fine. तो बेसिकली आप कोई भी सब्जी आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं जो है आपके पास. पनीर भी डाल सकते हो अगर आपको इसको और देसी बनाना है. सो यू कैन इवन ऐड पनीर क्यूब्स इन दिस. वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है. या आई एम एक्चुअली कुकिंग इन द इंडक्शन, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम. हाँ, आप मशरूम के बदले आप सोया चंक्स भी डाल सकते हो. वो भी अच्छा आइडिया है. तो ये बहुत ही कस्टमाइजेबल है. मेन इज इसके इंडियन स्पाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, अभी हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे. तो अभी मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ. वील ऐड क्यूमिन सीड्स एंड देन गार्लिक. ये गार्लिक को मैंने ऐसे मिक्स किया है. स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं. आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो. पास्ता को कितना बॉईल करना चाहिए? तो पास्ता, मैंने जो पास्ता का पैकेट यूज़ किया था उसमें लिखा था 8 से 10 मिनट और मैंने उसको 8 मिनट बॉईल किया. इसमें मैंने गार्लिक डाला और उसके बाद करी लीव्स डाल रही हूँ. कड़ी पत्ता डाल रही हूँ. इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है डिश को और अच्छा फ्लेवर आता है. और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा तेल में मैं धनिया भी डालती हूँ. आई लाइक टू ऐड लिटिल सिलेंट्रो इन द तड़का बिकॉज आई फील दैट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर. बहुत अच्छा स्वाद देता है ये. तो आप कोई भी सब्जी या कुछ भी बना रहे हो, थोड़ा धनिया आप तेल में फ्राई कीजिए तो बहुत अच्छा स्वाद आता है. So we'll just fry all this. Which induction are you using? Some generic one. It's a Nesco everyday induction. अब ये फ्राई हो गया है. इसमें अब मैं डालूंगी अनियंस.
ये मैंने कांदा को अच्छे से चॉप किया है और इसमें मैंने 2 मिर्ची भी, कटी हुई मिर्ची भी डाली है। अभी इसको हमें अच्छे से सॉटे करना है। तो cook the onions till they turn translucent. अगर आप कांदा लहसुन नहीं खाते तो आप ये इसको नहीं भी डाल सकते हैं, या आप उसके बगैर भी बना सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बच्चे भी अच्छे से पसंद करके खाते हैं। मैंने आज अमूल घी यूज किया है। This pasta I am making in Amul ghee. We are making Indian curry pasta. So ये pasta has Indian flavors. So if you're used to eating white sauce pasta या फिर green pasta या red pasta, ये उन सब से अलग है क्योंकि इसमें पूरा देसी फ्लेवर जाता है। So hello to all those who just joined us. Thank you so much for joining this live. This is Priya here, and I'm from Florida. I'm a vegetarian and vegan food blogger, and my blog is called Cookielicious. So if you want to check out some interesting recipes, then do check out my Facebook page. I'm on Instagram and on YouTube as well. So yeah, thanks for watching, and if you have any questions, please feel free to ask. Name of the curry, name of the recipe again. The recipe we are making today is called Indian curry pasta. This is a very different kind of pasta recipe to what you are used to having. It's got all the Indian flavors, सारे देसी flavors है इसमें. We use butter instead of ghee. Yes, अगर आप बटर घी नहीं यूज करना चाहते तो आप इवन अमूल बटर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाद आता है अमूल बटर से। सो अमूल बटर भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर एनी कुकिंग ऑयल। अगर आप वीगन हैं, अगर आप डेयरी नहीं खाते तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स जैसे मैंने आपको बोला, यू कैन मिक्स एंड मैच वट एवर वेजिटेबल्स यू हैव। इसमें आप पालक डाल सकते हैं टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस फॉर योर किड्स, क्योंकि आप जितना सब्जी डालोगे उतना फ्लेवरफुल ये बनेगा। So Vaishali asks, without onion, what can we use? No, you can just skip onion and garlic. If you don't like onion or you don't eat onion, you can just skip it. That's okay. Okay, अभी ये onions हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने एक टमाटर को कट किया है, तो हम एक टमाटर डालेंगे इसमें, और इसमें मैं थोड़ा नमक भी डालूंगी ताकि ये जल्दी से पक जाए। It will speed up the process when I add salt. It's Cookielicious is the name of our this Facebook page. It's called Cookielicious. My Facebook page is called Cookielicious Veg. I will share all the links once the live is done. On Instagram, you can find me at Cookielicious. तो अभी हमें टमाटर को तब तक पकाना है, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। जब तक ये टमाटर पक रहा है, मैं आपको वापस इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो अभी हमें ज्वाइन किए हैं। सो दिस इज अबाउट 280 ग्राम्स ऑफ पास्ता। ये मैंने लेंटिल पास्ता यूज किया है, लेकिन आप कोई भी पास्ता यूज कर सकते हो। आप होल व्हीट पास्ता यूज कर सकते हो, आप रिफाइंड फ्लावर पास्ता यूज कर सकते हो, एंड अगेन पास्ता में कोई भी वैरायटी भी चलेगा। येस, इट इज वेरी कलरफुल डिश बिकॉज इतने सारे वेजिटेबल्स इसमें जाते हैं, विच मेक्स इट रियली कलरफुल।
Yeah, so this is for a family of 6 people. You can make this 4 to 6 people. I have chopped mushrooms. Again, mushrooms आप कोई भी वैरायटी के ले सकते हो. मैंने रेगुलर वाइट मशरूम्स लिया है और उसे चॉप किया है. मगर आपको अगर मशरूम का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो. मटर बहुत स्वादिष्ट लगता है, सो इफ़ यू कैन ऐड मटर इट विल बी ग्रेट. इफ़ नॉट मटर यू कैन ऑल्सो ऐड एडमामे, दैट ऑल्सो टेस्ट रियली गुड. ये अगेन 1 कप लिया है मैंने मटर. ये बेल पेपर्स, कैप्सिकम, ये मैंने अलग अलग कलर के थोड़े थोड़े लिए हैं. Okay, I'll come to that. Okay, so then there is bell pepper and these are all the masala and spices that we will be using. इसमें हल्दी है, धनिया जीरा पाउडर है, गरम मसाला, मस्टर्ड सीड्स या राई, जीरा, क्यूमिन, चिली पाउडर, पार्मेजान चीज़, अमूल घी. तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने अमूल घी डाला है पैन में और उसके अंदर फिर हमने राई डाली, फिर वी पुट जीरा, क्यूमिन, देन वी एडेड द गार्लिक, लहसुन, फिर कड़ी पत्ता, करी लीव्स, फिर हमने डाली अनियंस, कांदा डाला और फिर हमने डाली टोमेटोज, टमाटर डाले. सो अभी हम इन्हें सब पका रहे हैं. तो आजा, it's okay, we'll figure it out. That is not the problem. If you charge it, it will shut down quicker. Okay, next we'll be adding the mushrooms. अब मशरूम्स को हमें अच्छे से पकाना है. ये सारे सब्जियां ऐसी हैं जो ज़्यादा वक्त नहीं लगाते कुक होने में, which is very convenient when you are making a quick dinner. You know. Thank you so much. Thank you for liking the recipe. This is one of my favorite. मैं इसे really nearly every week बनाती हूँ. ये मेरा favorite पास्ता रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए. बहुत ही स्वादिष्ट है ये पास्ता. अगर आपको लगता है इटालियन पास्ता थोड़ा ब्लैंड है, उसमें तीखापन नहीं है, तो ये kind of helps cater to that. I should say. Don't move, you're really moving. இதே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு. Tomatoes should be cooked completely or leave a little raw? Tomatoes need to be cooked completely. नहीं तो it has that very कच्चा smell which is not really nice. तो सब्जियों को आपको अच्छे से पकाना ही पड़ेगा.
How long does this mushroom take to cook? I have always eaten canned button mushrooms. मैं मशरूम्स को नॉर्मली जब मैं पकाती हूँ तो मैं उसको पूरा ड्राई कर देती हूँ, पूरा उसका पानी जब तक निकल ना जाए तब तक मैं उसको रोस्ट करती हूँ, सौटे करती हूँ. बट अभी पास्ता जैसे डिश में जैसे डिश में इट कुड टेक 5 to 7 minutes. थोड़ा हाई फ्लेम में अगर आप कुक करोगे तो जल्दी पक जाएगा. ये आप स्पेगेटी के साथ भी बना सकते हो या अपना हक्का नूडल्स के साथ बना सकते हो, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है. मैं अभी इसमें मटर भी डालूंगी. मैंने फ्रोजन मटर यूज किया है. आई हैव यूज्ड फ्रोजन पीस. अगर आपके पास मटर नहीं है तो डोंट वरी, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू पुट इट. लेकिन मटर से बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो अगर आप मटर डाल सकते हो तो जरूर डालिए. So Rinku says color is very nice. Shayli is saying looks super yummy. Thank you so much. Shubham is saying, ma'am, you like Maggi noodles. Yes, I love Maggi noodles. It's my favorite. एक्चुअली आप इवन मैगी नूडल्स में भी ये ऐसे ही बना सकते हैं. आप मैगी नूडल्स को अलग से पकाइए और फिर उसका मसाला जो है वो इसमें डाल के मिक्स कीजिए सब्जियों के साथ, और फिर आपका कुक्ड मैगी नूडल्स आप इसमें डाल के मिक्स कीजिए तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है मैगी का. और फिर ऊपर से चीज डालिए तो बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है. So that's just another way of enjoying Maggi if you like Maggi. Sarita says nice recipe. Thank you. अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे बेल पेपर्स. अगर आपके पास पालक है तो आप पालक भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अलग टेस्ट आता है. कैप्सिकम को हमें पूरा नहीं पकाना है, उसमें इट हैज टू हैव दैट क्रंच. तो उसको जस्ट 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे. तो आप देख सकते हो दिस इज लोडेड विद वेजिटेबल्स. तो आप आपके बच्चों को ये खिला सकते हो क्योंकि इसमें इतनी सब्जियां हैं विच मेक्स इट रियली न्यूट्रिशियस. अब मैं इसमें मसाले डालूंगी विच इज टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और ये धनिया जीरा पाउडर है. ये सब मैं एक्चुअली घर पे ही बनाती हूँ. ये सारे मेरे रेसिपीज ऑन द ब्लॉग पर है, इफ यू वांट टू चेक इट आउट. मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, आई मेक इट एट होम. आई हैव ऑल द रेसिपीज ऑन द ब्लॉग. फिर मैंने डाला है चिली पाउडर. ये आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिए. अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो थोड़ा और डालिए. मैंने 2 टीस्पून्स डाला है. कैप्सिकम फर्स्ट मिनट नहीं डाल सकते. आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बट ओके. कैप्सिकम फर्स्ट नहीं डाल सकते, फर्स्ट मिनट में नहीं डाल सकते, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि कैप्सिकम को बहुत कम टाइम लगता है पकने के लिए. बिकॉज कैप्सिकम कुक्स रियली फास्ट. यू डोंट नीड टू ऐड इट फर्स्ट, यू ऐड इट लास्ट. So you add vegetables in the order the time they take to get cooked. तो जो सब्जियों को ज्यादा वक्त लगता है पकने में आप पहले वो डालिए, और फिर जो सब्जियां जल्दी पक जाती है वो आप डाल सकते हो. Nikhil, it looks really cookilicious. Thank you so much, Nikhil. Nikhil Jiju. Oh, thank you, Jiju.
तो अभी हमने इसमें जस्ट एज ए रिकैप मैंने घी डाला था. घी में आई पुट राई, मस्टर्ड सीड्स, फिर क्यूमिन, जीरा, फिर हमने डाले लहसुन, गार्लिक, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, फिर सब्जियां डाली जो पहले अनियंस डाले, कांदा, फिर टोमेटो, फिर हमने मशरूम्स डाले. मशरूम्स के बाद वी पुट ग्रीन पीस, मटर और कैप्सिकम, बेल पेपर्स. ये सारे सब्जियों को पकने के बाद हमने मसाले डाले जो अगेन बहुत ही सिंपल है. इट इज़ टर्मरिक पाउडर, हल्दी, चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर एंड गरम मसाला. It's okay, I'll tell you. So someone is asking, can you use Kashmiri mirch instead of... Yes, if you don't want it very spicy, आपको सिर्फ कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो. तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है अभी. Somebody, your blog name is not showing on the screen or the recipe. It's on the Facebook page of Amul. They have tagged me on the page. It's called Cookielicious. COOKILICIOUS. Cookielicious. Padma just saying it's a one pot meal. Yes, it is a one pot meal. मैंने पास्ता भी इसी में बॉईल किया था, यही पैन में बॉईल किया था. And so now बस अभी हमने इसमें पास्ता डाल दिया है, कुक्ड पास्ता. And I'm just going to mix it all together. पहले मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ. हम इसमें चीज़ भी डालने वाले हैं एंड में, तो आप उसके हिसाब से नमक डालिए क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है. चीज़ इज़ ऑलरेडी सॉल्टी, सो वी आर गोइंग टू ऐड चीज़ एज वेल इन द एंड. सो ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंगली. तो ये आपका इंडियन करी पास्ता सैलेड तैयार हो चुका है. आप देख सकते हो कि ये बहुत ही कलरफुल है, बहुत न्यूट्रिशियस है. अगर आप रिफाइंड पास्ता नहीं यूज़ करते, अगर आप होल व्हीट पास्ता यूज़ करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है. अब इसमें आई एम गोइंग टू पुट पार्मेजान चीज़. somebody is asking, boil the pasta उसे या फ्राई पास्ता यूज? नो, आई हैव बॉइल्ड द पास्ता फर्स्ट. मैंने जो पास्ता के पैकेट में इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो करके उतने मिनट मैंने इसको बॉईल किया. अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे धनिया. और थोड़ा और देसी टच के लिए लेमन जूस, नींबू का रस. चीज भी अमूल का ही है या प्रीटी मच? यस, यू कैन यूज अमूल चीज. आप इसको अमूल बटर में भी बनाइए, बहुत अच्छा बटर फ्लेवर आता है पास्ता में. थैंक्स चेतन, लुक्स ग्रेट. थैंक यू. सो आई होप यू कैन सी how easy this recipe is and how delicious it looks. तो ये पास्ता अब हो चुका है, इसको हमें सर्व करना है. So this is how the Indian curry pasta looks. Very colorful, very delicious, very nutritious and very easy and simple to make. ये आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आएगा. So now let's move on to the next recipe. Awesome recipe, quite different yet so close to home. Thanks for sharing. Thank you so much. So it's like... Thank you. Now let's move on to our next recipe, which is called mango mastani. क्योंकि ये मैंगो का सीज़न है, सबके घर में मैंगो ज़रूर होगा.
तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको मैंगो मस्तानी बनाने सिखाऊं. So I'm just setting up the mango mastani ingredients. So just give me a second. Please parcel curry pasta. Okay, so just give us a couple of minutes while we're setting up for the next recipe, please. Thank you for your patience. Okay. Okay, so now we are making mango mastani. Thank you so much. It's really very delicious, so do try this recipe. It's really yummy, the Indian curry pasta. So now we are making mango mastani. For this, you can use fresh mangoes. मेरे पास यहाँ fresh mangoes नहीं है, तो मैं mango pulp use कर रही हूँ. But you need to pick mangoes. अगर आप fresh mangoes use कर रहे हो, तो ensure that the mango is really fully ripe and it's very sweet, ताकि आपको शक्कर ऐड करने की ज़रूरत ना हो. तो I'm going to use like 1 cup of mango puree, mango pulp, या फिर आप अगर फ्रेश मैंगो यूज़ कर रहे हो तो आप 2 मैंगोज यूज़ कर सकते हैं. एंड देन आई विल बी यूजिंग अमूल मिल्क 1 कप. आई हैव चॉप्ड पिस्ताशियोज हियर. ये हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे. केसर यूज़ करेंगे अगेन गार्निश के लिए, और चेरीज़ है, और अमूल आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम. तो अब हम इसे ब्लेंडर में बनाएंगे. It's a no cook recipe. We just need to add it in the blender. तो blender में गया एक milk, 1 cup milk, then 1 cup mango pulp, young mango puree, और इसमें हम आइसक्रीम भी डालेंगे. About 1 या 1.5 scoops of ice cream will go in this. That's it. अगर आपका मैंगो स्वीट नहीं है तो आप इसमें थोड़ा शक्कर भी डाल सकते हैं. तो आप आपके मैंगो को टेस्ट कीजिए पहले, और फिर आप जज कीजिए कि अगर आपको शक्कर चाहिए तो और थोड़ा शक्कर डालिए. मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि आइसक्रीम है और मेरा मैंगो पल्प बहुत ही स्वीट है. सो आई एम नॉट एडिंग एनी additional sugar to this. अब इसको हम blend करेंगे. I hope you liked the Indian curry pasta. Let me go here with that. I don't know if you can hear me. This is really yummy. So do try it. क्योंकि ये बहुत ही मस्त टेस्टी बनता है इंडियन करी पास्ता, और इसमें सारे देसी फ्लेवर्स हैं. तो do try this recipe. Which blender are you? Mine is a Hamilton Beach blender. Thank you. This is a Hamilton Beach blender. Okay.
सो नाउ सो आइडियली आप ये जो ब्लेंड है आप बना के इसको फ्रिज में रख दीजिए और जस्ट बिफोर सर्विंग आप इसको निकाल सकते हैं। और एक टिप है, आप दूध तो ठंडा यूज करेंगे ही, आइसक्रीम भी ठंडा होगा। अगर आप फ्रेश मैंगो से बना रहे हो तो मैंगो को भी आप फ्रिज में रखिए। कीप द मैंगोज इन द फ्रिज सो दैट दे आर रियली कोल्ड, बिकॉज दिस हैज टू बी वेरी कोल्ड व्हेन यू सर्व। इट टेस्ट रियली गुड व्हेन इट्स कोल्ड। So they are asking, instead of vanilla ice cream, what can we use? वनीला आइसक्रीम के अलावा आप मैंगो आइसक्रीम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंगो आइसक्रीम और मैंगो मिल्क शेक विल बी टू ओवर पावरिंग, द टेस्ट विल बी टू ओवर पावरिंग, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू यूज वनीला आइसक्रीम इंस्टेड। बट आप मैंगो आइसक्रीम यूज कर सकते हैं, कोई भी जिसका फ्लेवर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ना हो, विच डजंट कम इन द वे ऑफ द मैंगो, यू कैन यूज दैट। तो जब हम सर्व करने वाले हैं, सो दिस इज हाउ वी नीड टू सर्व इट। वी नीड टू ऐड मैंगो आइसक्रीम, सॉरी वनीला आइसक्रीम ऑन टॉप। और फिर इसको गार्निश करने के लिए इसमें थोड़ा चॉप नट्स। So they're saying, can you use yogurt? Yes, you can try yogurt। अगर आप लीन वर्जन के लिए जा रहे हो तो you can try yogurt as well। आप थोड़ा केसर डालिए इसके ऊपर and then top it with a cherry। तो अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, आप इसमें स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, चॉकलेट शेविंग्स डाल सकते हैं। तो टॉपिंग्स के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये बहुत ही स्वादिष्ट, और इसको ठंडा सर्व कीजिए, ऑलवेज सर्व इट चिल्ड। So Tanuja says, love your mango mastani recipe. I have both these recipes on the blog, so you can follow my blog or check out my blog and you will get the recipe. So this is what we've made today. This is the Indian curry pasta and this is the mango mastani. So again, this is very simple to make. You just need to add mango, ice cream, milk, and that's it. Yes, you can also add a small umbrella to this to make it look more exotic. But हाँ, आप टॉपिंग्स में आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपके पास है। मैंने तो आज पिस्ताशियो पिस्ता डाला है, बट आप इसमें आमंड्स, कैश्यूज, टूटी फ्रूटी, जेली भी बहुत मस्त लगता है। आप कोई कलरफुल जेली डालिए इसके ऊपर, इट टेस्ट रियली नाइस। Cherry just gives a nice contrast, so cherry is also a great add to this. My pasta recipe and mango mastani, both the recipes are on the blog. I will share it here on this live video comment section. Once the live video is over, then you will get both the recipes and you can try them both. But yeah. Thank you so much. I'm so glad you all enjoyed both the recipes. Do give these recipes a try. ये लॉकडाउन में at least something new and different you can enjoy. So that is good. So yes, I hope you all enjoyed watching this live video. Thank you so much for joining, all of you. My Instagram ID is Cookilicious, COOKICILIOUS. Yes, ये जो mango mastani है, ये बहुत indulgent drink है, because it's very rich. You can add Amul cream as well in this when you are blending the mango puree. You can add Amul cream, बहुत अच्छा taste आता है Amul cream से भी. So आप Amul cream भी try कर सकते हो.
So yeah, thank you so much for watching. You can follow me on Instagram, YouTube, Facebook. I'm everywhere. So, and also check out my food blog, which is a vegetarian vegan recipe blog. I am from Florida. I know somebody asked me before. So I'm from Florida, but I'm originally from Bombay. So yeah, that's why the Indian curry pasta and the mango mastani recipe today. I do a lot of live videos as well. So if you follow me on Facebook and Instagram, you will see I will be coming. I come online pretty often, and I share recipes from my blog. So if you're interested to check that out, so please do follow me there. And yeah, please continue watching the Amol live videos. I think there's one more scheduled for today, so do catch that. And hope you all have a great rest of the evening. And thank you so much for watching. Take care and stay safe. Thank you.